Very good afternoon to everyone. This webinar is only for those who have been following reversal buy sell, to buy sell in action in tune with trending leg. And for those who are following RAR good above series justified, inactive, reactive for 5% plus gain. While following reversal buy sell or RAR, we always used to check if the good above series is justified and follow buying has come or not, follow selling has come or not, with the help of PCR PCS. And it was taking time, it was a bit difficult to check whether recently it is trading with PCR or not, and what is the recent support. The significance and usage of this already we know. Let us not go into more usage and more significance of this now. Secondly, one strong request not to use these PCS, PCR occurrences independently. It doesn't work. If it works, we'll see later. But now our purpose is to check if follow buying or follow selling has come or not. This I wanted to explain in three phases. One is PCR or PCCB trades on higher side along with BDP and closes with support or stop and reverse to sell. PCS or PCDS trades on lower side along with WDP and closes with master resistance or with stop and use to buy. For a week's time, I request all of you to check. There is no error now, but still let us study. I'll revise what we have learned on last Tuesday. Let me also explain you one more thing. This is nothing new. We are not learning anything new. Actually, 3-4 साल पहले भी, when I have explained the trending leg, the time I used to say PCS and post-closing climbing by note down and buy on retracement nearer to PCS, and prices will continue to rise further when PCCB trades on higher side. This recent, either it is green or red, this suggests SEC, according to PCS PCR, it is in buy. Furthermore, when it is trading with PCS and PCCB, already it is in buying, prices are rising. We are asking two questions: when prices will stop rising and start falling? When PCS trades on lower side along with WDP and also manages to close with PCR, prices stop rising, started declining. This is the logic. Whenever PCCB trades on higher side,
Prices are already rising. Now further it has continued to rise further when trades along with BDP and closes with PCS. Here prices are declining because a PCR, PCDS is there. But since it is in buying only, green ladder is there recently. So this is nothing but correction sell. Blue color is correction sell. But when prices will continue to decline further, when 1301.95 trades on lower side along with WDP and closes with PCR, that is known as LCP to sell, and उसका भाव हमने दे दिया 1299.90. Here 1301.95 falls within interchannel zone. So when lower band trades on lower side, we'll say PCDS is traded. Suppose ACC opens RMSL lower, then that if opening drifting sell price is lower than this LCP to sell, then during market hours after 9:30, it will change accordingly. Only in case of RMSL higher opening and RMSL lower opening. Suppose RMSL higher opens. As of now, PCR is 1322.15. So next level is 61.8%, which we ignore. So 100%, 1334.45. Suppose it opens RMSL higher above 100% and opening climbing by is 1341. Then immediately here LCP to buy price will change during market hours. मैंने लास्ट टाइम मैसेज भेजा था कि दिस LCP to buy LCP to sell इनकरेक्ट है, शायद अभी ट्रैक मत करो, बट नाउ इट हैज बीन करेक्टेड. आई हैव चेक थरोली. आप लोग भी जब यूज करोगे तो मालूम पड़ जाएगा. एज ऑफ नाउ पीसीआर का नेक्स्ट लेवल लिया है, पीसीडीएस का नेक्स्ट लेवल लिया है. When opens RMSL higher lower, then LCP to buy, LCP to sell will change accordingly. तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन लेडर फर्स्ट टाइम अकर हुई है. हाउ here it is mentioned PCCB 1259.40 is traded on higher side on 19th June 2020, and it is mentioned here 19th June 2020 1269.10. So 1259.45 falls within interchannel zone, and upper band was traded at 1269.10 and closed with support. So fresh support in RP, closes with PCS along with BDP, all the three conditions satisfied. So यहाँ पे हमने कहा 19th June को PCCB prices have continued to rise further at 1269.10. Likewise, here 1290.05 is traded on higher side on 23rd June at 1293.95. ये हमने बहुत डिटेल में देखा, समझा, और प्रदीप ने बहुत अच्छी तरह से 5-7 केस स्टडी के साथ पार्टिसिपेट भी किया. तो आई होप हम उसमें टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. Now the second concept in this PCS PCR which I want to explain is importance of closing above 100% and importance of closing below 100%, and particularly when climbing by itself is RC 100%, how it behaves. हमने यूं काफी बार एक्सपीरियंस किया है, वेबिनार में काफी बार हमने बात की है. बाइंग का जजमेंट हो and FC 38.2 traded, FC 61.8 traded, but it has missed to trade FC 100%, and finally it is closing as post-closing drifting sell FC 100%.
तो एक बार वहां से बाउंस बैक आता है, बाइंग की पोजीशन जो है, दो FC 38.2 is traded, 61.8 is traded, we should not square off. It gives us one bailout opportunity on next day, क्योंकि बाइंग में था। तो ये हम हरू भरू बात करते थे और हर बार सही हुआ है, बट वो मेरा एक्सपीरियंस था, अपने पास स्टडी नहीं थी। आज हमारे पास, हम स्टडी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बाइंग जजमेंट, सेलिंग जजमेंट नहीं है, बट हाईलाइट कर दिया। जहां जहां हमको ये डबल स्टार दिख रहा है PCCB के सामने, मतलब RC 61.8 is traded and RC 100% is claiming buy, मतलब RC 100% ट्रेड नहीं किया है। तो हम चेक करते हैं 4 जनवरी को, फिर उसका इम्पैक्ट बाद में देखते रहेंगे हम, क्योंकि इम्पैक्ट देखना है तो अपने को बाइंग सेलिंग जजमेंट के साथ देखना पड़ेगा। Here PCCB 1860, मतलब it was RC 100%. Final post closing climbing by was RC 100%. RC 100% ट्रेड नहीं किया, बट 61.8 ट्रेड किया है, इसीलिए RC 100% क्लाइंबिंग बाई है। और ये शायद बाइंग का जजमेंट होगा, वैलिड बाई भी है, लेडर भी है, तो RC 100% क्लाइंबिंग बाई है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई यूसेज, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज कंटिन्यू टू राइज फर्दर इन कमिंग डेज। फिर हम RC PCCB RC 100% देखते हैं, फिर हम PCDS में भी जाएंगे। PCCB के सामने अगर 2 स्टार हो, डबल स्टार, yes here it is PCCB डबल स्टार है, तो 16 फरवरी 2018 RC 61.8 1651.95 ट्रेड किया है, बट 1665.60 हायर से ट्रेड नहीं किया, एंड पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय वाज RC 100%। तो हमको ये देखते रहना है कि अगर ये सेलिंग के जजमेंट में रहता, जो यहाँ पे हमको हरू भरू दिख रहा है कि ये सेलिंग के जजमेंट में ही था, PCDS ट्रेड करके चल रहा था, स्नेक आया हुआ है और prices have stopped rising and continue to fall, उस स्टेज में है, एंड सडनली कभी बार ऐसा होता है कि RC 38.2 RC 61.8 ट्रेड कर लिया एंड RC 100% इज क्लाइंबिंग बाय। तो दिस सजेस्ट कि भाई ये बुल ट्रैप है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। शायद सेलिंग की पोजीशन हो पोजिशनल ट्रेडर्स की, पैसिव ट्रेडर्स की, तो उनका सेलिंग का स्टॉप लॉस जो है वो RC 100% होना चाहिए। बाइंग की पोजीशन हो पोजिशनल ट्रेडर की, पैसिव ट्रेडर की, तो उनका स्टॉप लॉस शायद हो सकता है FC 38.2 आ रहा हो, FC 61.8 आ रहा हो, लेकिन इट शुड बी FC 100%। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हो सकता है 38.2 ट्रेड करते ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 61.8 ट्रेड करते ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट वी शुड वेट फॉर द बेल आउट अपॉर्चुनिटी ऑन नेक्स्ट डे, जब PCDS is FC 100% एंड सेलिंग की पोजीशन हो, तो जब RC 61.8 ट्रेड कर लिया बट RC 100% ट्रेड नहीं कर सका, मतलब दाल में कुछ काला है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सो एक लैंग्वेज में हम सीखे कि बाइंग का जजमेंट हो एंड FC 61.8% ट्रेड किया बट 100% ट्रेड नहीं किया, 100% इज ड्रिफ्टिंग सेल, तो अक्यूमुलेशन है। सेलिंग का जजमेंट हो और RC 38.2 ट्रेड कर लिया, 61.8 ट्रेड कर लिया बट 100% ट्रेड नहीं किया, तो पुल बैक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अपने को इस तरह से आगे देखना है, इतने सारे केस स्टडीज है, उसमें भी मालूम पड़ जाएगा। फिर हम PCCB
यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे डबल स्टार आया, तो प्लान खोल के देखते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसमें से खुद का एक ट्रेड नहीं निकालना चाहिए। RC 61.8 1650-80 ट्रेड किया हुआ है, एंड RC 100% 1659 ट्रेड नहीं किया है। RC 100% ही TVHS था, तो ये पहले का ही RC 100% ट्रेड नहीं किया 1665। वो यहाँ पर भी 19 फरवरी को, अच्छा ये PCDS था, छोड़ो, हियर PCCB 26 फरवरी को ट्रेड नहीं किया। तो व्हाट इज हैपनिंग, देखो यहाँ पे फिर PCCB इज ऑन 26 फरवरी, RC 61.8 is traded, but RC 100% is not traded. Missed to trade RC 100%. और सेलिंग का जजमेंट हो तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन जो है, दो इट इज ट्रेडेड विथ फ्रेश सपोर्ट, दो इट इज क्लोज विथ मास्टर सपोर्ट, दो इट इज क्लोज विथ PCCS एंड PCCB, दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ। अगर सेलिंग का जजमेंट है तो, मैं 8 बार 10 बार 20 बार शायद बोल दिया, सेलिंग का जजमेंट है तो PCCB RC 100% इज रेजिस्टेंस। एंड देखना पड़ेगा हमको, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि जहां जहां RC 100% क्लाइंबिंग बाई है, पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाई है, RC 100% ट्रेड नहीं किया है, तो वहां पे हमने डबल स्टार दिया हुआ है। और PCCB विद डबल स्टार देखें, और PCCB इज देयर एनी PCCB, am I missing? टूट ही रहा है, इसके लिए PCCB मिल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे PCCB डबल स्टार मिला है हमको, तो ये हम देखते हैं 25 जून, हाउ इट हैज बीन अचीव्ड, बस वही समझा रहा हूँ। RC 61.8 is traded, yes, but RC 100% is not traded, and RC 100% is the post closing climbing buy। तो ये RC 100% जो है, how it is behaving during buying judgment, how it is behaving during selling judgment। बाइंग जजमेंट होने के बावजूद भी देखो, एक बार तो ये PCS 1295 तक करेक्शन सेल आया, रिट्रेसमेंट हुआ है। इवन इन बाइंग जजमेंट, if it is missed to trade RC 100%, एक बार करेक्शन सेल आता है, देखो इवन इन बाइंग जजमेंट। तो इस तरह से हम अब PCDS देखते हैं ऑन द अदर साइड। ये एक्चुअली 5 मिनट में भी समझा सकते थे, बट किसी को छोटा सा भी डाउट नहीं रह रहा है, एक भी क्वेरी नहीं रह रहा है, इसके लिए इसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अलग अलग तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। और सिर्फ एक दिन 2 दिन अगर हम इसको खाली स्टडी कर ले, तो जब हम डे टू डे ट्रेडिंग में आएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल स्ट्राइक अस। और ये नहीं सीखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे अपना प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। किसी को लगता हो कि यार कहाँ ये सब फॉलो होगा चालू बाजार में, कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चलेगा। उससे कोई बाइंग का जजमेंट, सेलिंग का जजमेंट चेंज नहीं होने वाला है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, देयर वोंट बी गोइंग टू बी एनी लॉसेस आल्सो। हाँ, एक बात है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कन्विक्शन बढ़ जाएगा। बहुत बार बाजार में ऐसा होता है कि मैं बाइंग में हूँ और 61.8 ट्रेड कर लिया और 100% ट्रेड नहीं किया और हायर साइड और नहीं बढ़ा, और नेक्स्ट डे समझ लो कि टूट के खुलता है, करेक्शन सेल होता है। ये तो बाइंग का जजमेंट है,
और मैं FC38.2 FC61.8 ट्रेड करते ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट 100% ट्रेड नहीं किया था। तो मैं अगर उसको होल्ड कर लेता तो मेरी कम से कम मुझे रिट्रेसमेंट में, बेल आउट अपॉर्चुनिटी में प्रॉफिट बुकिंग एट हाई लेवल मिलता। और हो सकता है कि नेक्स्ट डे ऐसी फील आ जाए, कन्विक्शन आ जाए कि यार ये बाइंग ही है, छोड़ना। और थर्ड स्टेज ऐसा भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, पोजिशनल पैसिव ट्रेडर्स है, कैश स्टॉक्स में काम करते हैं, वो तो सीधा बस बाइंग का जजमेंट है, बाय करके बैठ के एक ही स्टॉप लॉस FC 100% TVLS, और RMSL लोअर खुला और FC 100% के नीचे RMSL लोअर का TVLS रहा तो बहुत कम रहता है बाजार RMSL लोअर के नीचे खुले। और जिस दिन RMSL लोअर बिलो FC 100% ओपन हुआ तो ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल का स्टॉप लॉस रख देंगे, बस बैठ के फिर काम करो अपना दूसरा स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग। उनके लिए ये सब है जिनको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, जिनको स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग करनी है, जिनको पोजिशनल और पैसिव ट्रेडिंग करनी है, जिनको बाइंग का जजमेंट है, उसको होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, उनके लिए ये लर्निंग है। अदरवाइज इट इज ओके, क्योंकि मुझे इस तरह से कहना पड़ता है क्योंकि मैं देते भी जा रहा हूँ कुछ कुछ नई नई बात, और फिर ऐसा जिसको लगता हो कि सर नया नया सिखाते जा रहे हैं, दे रहे हैं, कैसे बचेगा, तो मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कुछ भी प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने की और प्रॉफिट ग्रो करने की पैशन है, इच्छा है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत न्यू लर्निंग ऐड करते रहना पड़ेगा। आई एम नॉट शेयरिंग एनी न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। 11 जनवरी को PCDS, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई नहीं आवे, आपको खाली मेरे बारे में सोचना है कि ये आदमी अगर इतना बैठ के रिसर्च कर सकता है और उसको बना भी सकता है और समझा भी सकता है, तो ना हमको तो रिसर्च करना है, ना इसको बनवाना है, ना मुझे किसी को समझाना है, 3 काम तो कम हो गए, खाली प्रैक्टिस करना है, बस देखना है। तो आपको सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे ना तो आपको ये प्रैक्टिस जो करनी पड़ रही है, एक बार देखना पड़ रहा है, टाइम देना पड़ रहा है, वो बहुत इजी लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत रिलीफ मिल जाएगी। यहाँ पे PCDS इज 1792.70 है, FC 100%। लास्ट रजिस्टर, लास्ट ड्रिफ्टिंग सेल इज, फाइनल ड्रिफ्टिंग सेल इज FC 100%। FC 100% के नीचे नहीं गया तो वहां पे हमने डबल स्टार रेड कलर का मार्क कर दिया, एंड FC 100% ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा। देखो 100% ट्रेड नहीं किया तो वहीं पे रह के सीधा 1857। आई एम नॉट सेइंग इट इज वर्कड हियर, बट अपने को ये कैसे बनाया है ये देख बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसको कंप्यूटराइज कर दिया और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। अब आप हम सबको मिलके ये देखना है कि हाउ इट इज बिहेविंग। 19 जनवरी यहाँ पे PCDS 1807.50 था फाइनल रेजिस्टेंस, तो हियर ये 1807 जो है इसीलिए आया क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस 1807 है, और 1807 उसने ट्रेड कर लिया तो बहुत मस्त टूट भी गया, नहीं बढ़ा, फिर भी 1805 से 1825 दिखा, उसी दिन 1837 भी आया, 27 भी आया, बट we'll see another PCDS जहाँ पे डबल रेड स्टार हो, फिर सिंगल स्टार दे समझाता हूँ, फिर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है वो भी समझाता हूँ, फिर इन RC इन FC है, 4 बात है इसमें, 4 सिंबल दिया हुआ है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ग्रेटर देन लेस देन, इन RC और इन FC। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये ध्यान में रखे तो तो कुछ लोग आइटम खाने की बनाने की सब वही होती है कुकिंग में स्टाइल, ये वन सेम फूड इट इज, पर बोलते हैं ना किसी के हाथों में जादू है, वो कोई जादू वादू नहीं होता है, वो कुछ कुछ ऐसा करते होंगे, ऐसा PCDS 100% 61.8% ऐसा कुछ वो ध्यान में रखते होंगे और फाइन ट्यून करते जाते होंगे अपनी स्किल को, तो उनके हाथों से खाना अच्छा बनता है, उनके हाथों से कोई भी काम अच्छा होता है जो बहुत बारीकाई से हर छोटी छोटी बात को
ध्यान में रख के रशअप नहीं होके, they take care of everything, every small thing. I'm talking about small thing. Art is not handling the big work and big projects. Art is how we are handling the small things and not ignoring it. That matters everywhere, I believe. 7th March 2018 PCDS FC 100% जो है वो 1566.60 है, तो FC 61.8 is traded and 100% is the drifting sell. तो हमने वहां पे डबल रेड स्टार दे दिया, वो सेलिंग का जजमेंट हो तो इट कंटिन्यूज टू फॉल आल्सो फर्दर। इसको इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग का जजमेंट साथ में चाहिए। वो तो जो हाथ में ट्रेड रहेगा ना, वो देखोगे ना कि बाइंग का जजमेंट था और FC 61.8 ट्रेड किया बट 100% ट्रेड नहीं किया, तो हाउ इट इज बिहेविंग। सेलिंग का जजमेंट हो और RC 61.8 ट्रेड कर लिया बट RC 100% ट्रेड नहीं किया, तो हाउ इट इज बिहेविंग। धीरे धीरे ये करते करते एक सेंटेंस समझ में आएगा कि बाइंग का जजमेंट हो ना, तो FC 100% is the best stop loss to carry on to hold the profit. सेलिंग का पोजीशन होना, RC 100% is the best stop loss. हाँ, थोड़ा लंबा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट ये एक ही सेंटेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो एक्सपीरियंस से है। हम सब एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोग एक्नॉलेज करते रहना। आप स्टडी भी करोगे, अब मुझे मालूम है, और क्योंकि स्टडी कर सके इसके लिए एक एक प्लान खोल के देखना नहीं पड़े, इट इज हाईलाइटेड हियर PCDS। यहाँ पे PCDS 1523.85 है, तो 1523.85 इज द PCDS। जो लोअर साइड उसने ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे डबल रेड कलर का डबल स्टार दे दिया। एंड ऐसे दिख रहा है कि 4-4 के बाद 12-4 तक 1523 वो ट्रेड कर ही नहीं पाया लोअर साइड, और वहां से 1630 आया। यहाँ पे PCDS 1556 था, डबल रेड स्टार, तो 1556 1556 1556 1556 वहीं तक आया। एंड यहाँ पे 1556 ट्रेड किया भी होगा तो फ्रेश रेजिस्टेंस देके ट्रेड किया था। 1556 का नेक्स्ट लेवल FC 61.8 FC 100% होता है, क्योंकि 61.8 हम इग्नोर कर दे तो 1556 इज नेवर ट्रेडेड। टेक बेल आउट अपॉर्चुनिटी बाइंग के जजमेंट में भी मिली, तो इस तरह से आप डबल रेड स्टार को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 2 मई को अगर सेलिंग का जजमेंट है और PCDS है और वो 100% 1546 ट्रेड भी कर लेता है आने वाले दिनों में इन सब्सिक्वेंट डेज, तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग आल्सो begins. I'm in love with these words. New round of buying begins. New round of selling begins. ये लैंग्वेज हम अगर हमेशा यूज करते रहे तो बाजार कितना भी बढ़ता रहे हम बाइंग कर पाएंगे, बाजार कितना भी टूटता रहे हम सेलिंग कर पाएंगे। सच कह रहा हूँ, अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया शिक्षा में, और सीखने से ज्यादा हमको जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, और लैंग्वेज जो हमारी है उसके ऊपर भी हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो मैं डबल ग्रीन स्टार डबल रेड स्टार में किसी को कोई क्वेरी हो कि भी नहीं समझ में आया तो उनकी क्वेरी सॉल्व कर लेता हूँ, देन आई विल गो टू सिंगल स्टार। एनी क्वेरी? कुछ कुछ लोगों के हैंड रेज बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट नहीं करता हूँ। दे विल हैव टू सेंड द मैसेज कि सर मुझे अनम्यूट करो, तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। नो क्वेरी? वाओ। तो फिर से मैं कहता हूँ, जब कोई क्वेरी नहीं रहती है और आपको समझ में आ जाता है
तो ऐसा मत समझो कि आपको समझ में आ गया, आप होशियार हो गए। थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दो कि सर को समझाना आ गया, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू सिंगल स्टार। कोई एक और स्क्रिप्ट लेते हैं। सिंगल स्टार, how it is behaving. पहले हम पीसीसीबी सिंगल स्टार देखते हैं, फिर पीसीडीएस सिंगल स्टार देखेंगे। सिंगल स्टार मतलब आरसी 38.2 is traded, but आरसी 61.8 is not traded। मतलब मैंने सिंगल स्टार और डबल स्टार को कुछ ऐसे रखा है कि बिलो आरसी 100%। दो ही बात हो सकती है, या तो आरसी 100% क्लाइंबिंग बाय होगा या आरसी 61.8 क्लाइंबिंग बाय होगा। आरसी 100% जो क्लाइंबिंग बाय होता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये हमारा एक्सपीरियंस है। बट एक दो पार्टिसिपेंट मुझे अगर नाम याद है तो निश्चित ने कहा कि भाई नहीं, मैं आरसी 100% ट्रेड करता है तो ही मैं होल्ड करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आरसी 100% ट्रेड करे तो ही बाइंग की पोजीशन होल्ड करना चाहिए। आरसी 38.2% ट्रेड करे तो भी होल्ड करना चाहिए। बस आरसी 61.8 ट्रेड करके बाइंग आती हो, या आरसी 61.8 ट्रेड कर ले बट आरसी 100% ट्रेड करना मिस हो जावे, चुक जावे, तो होल्ड नहीं करनी चाहिए, वापस नीचे मिल सकता है। तो उस बात को ध्यान में रख के मैंने ये किया है कि हाउ इट बिहेव्स व्हेन आरसी 38.2 ट्रेडेड बाइंग के जजमेंट में, बट 61.8 इज नॉट ट्रेडेड। मतलब बिलो आरसी सिंगल स्टार डबल स्टार, मतलब इट इज बिलो आरसी 100% ओनली। तो 24 जनवरी को एक्चुअली ये सेलिंग के जजमेंट में ही था, पीसीएस पीसीसीबी मतलब ब्राउन कलर, मतलब सेलिंग में था अकॉर्डिंग टू स्नैक्स एंड लेडर्स, अकॉर्डिंग टू पीसीआर पीसीएस, ये सेलिंग में ही था, इसीलिए चॉकलेट है। चॉकलेट मतलब फुल बैक बाइक। तो चॉकलेट में 38.2 ट्रेड किया तो वैसे भी इट इज ए पुल बैक ओनली। 61.8 ट्रेड किया तो भी पुल बैक ही है। तो यहाँ पे आरसी 38.2% traded 662 half, but RC 61.8% is not traded। मतलब बिलो आरसी 100% रहा, बट आरसी 38.2 was traded। तो वो हमको स्टडी करने के लिए, मेरा कोई स्टडी नहीं है इसमें, ये हमको स्टडी करना है कि बाइंग के जजमेंट में हाउ इट बिहेव्स। हाँ, सेलिंग के जजमेंट में तो ऑब्वियस है 38.2 ट्रेड करो या 61.8 ट्रेड करो, पुल बैक ही है। चॉकलेट आया मतलब पुल बैक ही है। बट बाइंग के जजमेंट में अगर 38.2 ट्रेड कर लेता हो तो वो बाइंग है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे फिर देखते हैं पीसीसीबी। पर तो हम इसको सिग्निफिकेंस में मैं जा रहा हूँ बार बार, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बाद में, पर तो हाउ दिस इज बीन डेवलप्ड ये देख लेते हैं। आरसी 38.2 अपर बैंड 615.35 था, और वही फाइनली ट्रेड किया था। और आरसी 61.8% क्लाइमिंग बाई था, आरसी 61.8 ट्रेड नहीं कर पाया। मतलब दिस वाज क्लोज बिलो आरसी 100%। 38.2 ट्रेड किया बट 100% ट्रेड नहीं कर पाया, तो हमने इसको सिंगल स्टार दिया। सिंगल स्टार, सिंगल स्टार, सिंगल स्टार। ये पीसीडीएस है, पीसीडीएस में बाद में चलते हैं। यहाँ पे पीसीसीबी हियर 28 मार्च को आरसी 38.2 564.70 ट्रेड किया है, बट 61.8 ट्रेड नहीं किया, और उल्टा स्टॉप एंड सेल भी हो गया। तो यहाँ पे आरसी 38.2 ट्रेड करके 61.8 ट्रेड नहीं किया, तो हमने सिंगल स्टार दिया। यहाँ पे आरसी 38.2 ट्रेड करके 16/4 को
38.2% ट्रेड किया है, बट 61.8 ट्रेड नहीं किया है, तो हमने इसको सिंगल स्टार दिया। कोई एक्टिव ट्रेडर्स के लिए कोई बात नहीं है, एक्टिव ट्रेडर्स भी ध्यान में रखे तो अच्छा है, तो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट डे नीचे में मिलेगा। थोड़ा बहुत 10-12 केस स्टडी अगर लाइव मार्केट में भी देख ले तो धीरे धीरे वो दिखने चालू हो जाएगा, फिर कुछ याद रखने की, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। RC 38.2% traded but 61.8 not traded, single star, single green color star, ये डबल है, PCCB के पास ये सिंगल है। तो 3 अगस्त को RC 38.2% 624 is traded but 61.8 is not traded, तो सिंगल स्टार दिया। इसी तरह से जब कॉलिंग चैनल 38.2 ट्रेड्स but 61.8 is not traded, 38.2 668 हाफ ट्रेड कर लिया है, बट FC 61.8 ड्रिफ्टिंग सेल है, तो हमने यहाँ पे सिंगल स्टार दिया है, सिंगल रेड कलर स्टार, सिंगल रेड कलर स्टार, मतलब FC 38.2 15 फरवरी को ट्रेड किया एंड 61.8% 590.05 के नीचे नहीं गया था। FC 61.8% फाइनल पोस्ट क्लोजिंग ड्रिफ्टिंग सेल था, हमने इसको सिंगल रेड कलर स्टार दिया है। एक और देख लेते हैं सिंगल रेड कलर स्टार, यहाँ भी PCDS सिंगल रेड कलर स्टार है, तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये तो बात की बात है। बाइक का सेल का जजमेंट ऐड करना पड़ेगा, करना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे 38.2% ट्रेडेड बट 61.8% नॉट ट्रेडेड एंड फाइनली क्लोजिंग FC 61.8 था। तो मेरा मानना ऐसा है कि सेलिंग का जजमेंट हो, 38.2 ट्रेड किया हुआ हो बट 61.8 ट्रेड नहीं किया हो, तो भी हमको सेलिंग की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बाइंग का जजमेंट हो, RC 38.2 ट्रेड कर लिया हो और 61.8 ट्रेड नहीं किया हो, तो ठीक है ना, RC 38.2 ट्रेड कर लिया तो हम बाइंग की पोजीशन होल्ड करते हैं और करनी चाहिए, कोई खास बात नहीं है। बट फिर भी जब बन ही रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं, तो दोनों तरफा बना लिया। बिलो RC 100% दो बात है, या तो RC 61.8 क्लाइमिंग बाय होगा या RC 100% क्लाइमिंग बाय होगा। अगर RC 100% क्लाइमिंग बाय है तो डबल स्टार दिया है, और RC 61.8 सिंगल स्टार दिया है। इसी तरह से बिलो फॉलिंग चैनल में अबव FC 100% अगर ड्रिफ्टिंग सेल है, मतलब FC 100% लोअर से ट्रेड नहीं किया है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ड्रिफ्टिंग सेल की, या तो FC 38.2% या तो FC 61.8%। अगर FC 61.8 ट्रेड किया हुआ है तो डबल रेड स्टार दिया है, FC 38.2 ट्रेड किया है तो बट 61.8 ट्रेड नहीं किया है तो सिंगल रेड स्टार दिया है। हमने इसी में दो साइन और है, ग्रेटर देन लेस देन, इन RC इन FC, उसमें जाने से पहले सिंगल स्टार और डबल स्टार में किसी को कोई क्वेरी हो तो मैं जवाब दे दूं। सिंगल स्टार का मतलब क्या, डबल स्टार का मतलब क्या, इसमें किसी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। आपने अगर हैंड रेज किया हुआ है बट मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, मतलब टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपका हैंड रेज किया हुआ यहाँ पे विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, आपको मुझे मोबाइल में मैसेज करना होगा कि सर हैंड रेज द हैंड बट प्लीज अनम्यूट मी। हाँ चेतन बोलो। Hello. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Sir, just one observation. I think you have taken a webinar in the month of June last week, and you have told us the important about the RC 100% and FC 100%. Whenever RC
person is a climbing buy, and if it doesn't trade, it will retrace till RC 14.6. And since last 2-3 weeks, I have been studying in weekly, and I think 95% it comes. So in the same thing, अगर आपड़ा buying ना judgment में हो, यानी if we buy the stock, and if say RC 100% don't trade, we can square off, and next day we can get it say RC 14.6. So that is up to an individual who does the case study. So I know okay, I think it will have a huge impact on my trading, okay, because I know the importance of RC 100% and FC also. मैं फिर से कहता हूँ, ये सीखने से इसमें कोई बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। Yes. कुछ नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम नहीं सीख रहे हैं, अगर हमको जितना आता है उसी में हाउ टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट, हाउ टू ग्रो द प्रॉफिट, और हाउ टू फाइंड द बेल आउट अपॉर्चुनिटीज व्हेन इन लॉसेस, वो हम स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं। सो वी आर फाइन ट्यूनिंग आवर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, नॉट द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। थोड़ा अगर काफी रीडिंग करोगे, जैसे चेतन बता रहे हैं, तो ऑन रिट्रेसमेंट, ऑन करेक्शन सेल, फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ में से माल निकल गया। हमेशा जरूरी नहीं है कि RC 14.6 आएगा। वी आल्सो कंपेयर्ड कि वो RC 100% ट्रेड कर लिया तो हमारा रीइनिशिएशन प्राइस होना चाहिए आइदर RC 100% और RC 23.6 ऑफ दैट प्लान, और RC 14.6, जो भी जहाँ भी जितना भी अपने को बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, पहले डेली प्लान में हम स्टडी कर ले। और एक बात का तो कॉन्फिडेंस हम सबको है कि शिक्षा में हम जो कुछ भी सीखते हैं, इट इज एप्लीकेबल इन अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स, ऑल द एक्सचेंजेस, ऑल द थिंग्स। एक बार डेली में स्टडी कर लो, फिर जो भी टाइम फ्रेम आपने अडॉप्ट की है, अगर हम वीकली जैसे में हम इस तरह से आपसे 100% TVLS के पास प्रॉफिट बुक कर ले, वो प्रॉफिट एंड ऑफ द डे करना है, क्योंकि वी डोंट नो बिफोर एंड ऑफ द डे उसको तो 100% ट्रेड कर लेगा कि नहीं कर लेगा। एंड ऑफ द डे लास्ट 15-20 मिनट मेरे हाथ में जो भी बाइंग की पोजीशन है, RC 100% TVLS तक आकर RC TVLS HVS ट्रेड नहीं किया है, बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी 5% की भी होती है, वो वीकली कर लिया तो इस तरह से कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है ग्रो भी कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि सेलिंग की पोजीशन हो और RC 61.8 ट्रेड कर लिया हो, तो ऑलरेडी लॉस है, या तो प्रॉफिट में लॉस है या तो नेट लॉस है, ठीक है ना। उनका स्टॉप लॉस रख के उस सेलिंग की पोजीशन को हमने छोड़ दिया, तो ये भी हो सकता है कि RC 14.6 नहीं वापस हो, वहीं से प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, और काफी अच्छा फॉल आ सकता है। या डे टू डे में लाओगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे चेतन को उस बात का कन्विक्शन है, जैसे आपको खुद का कन्विक्शन लेना होगा। ये आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में या स्टॉक एंड यूज टू बाय सेल के सेटअप में वो सिखाते हैं, वो अलग है। दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से हमको इसको अडॉप्ट करना है। सही है चेतन? सर अजीत से सवाल सर, तो सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंगल स्टार? लाइक आई हैव मतलब डबल स्टार, आई नो कि इफ देयर इज अ बाइंग पोजीशन and if FC 100 don't trade, I can carry on, and same in the selling. So what is the significance of a single star? How should we interpret? To my experience, RC 38.2 is traded buying position, we can continue to hold, but इसलिए बनाया कि there is कुछ एक बार वो निश्चित के साथ या किसी के साथ इस तरह से बात हुई थी, I don't forget the discussion what we had, निश्चित ही था, तो उसने कहा कि मैं RC 100% ट्रेड करे तो मैं होल्ड करता हूँ, नहीं तो उसका एक्सपीरियंस है कि RC 38 RC 100% के नीचे बंद हुआ ना, नहीं बढ़ता है। Yes, I know. So we can go
गो थ्रू दैट आल्सो, इसके लिए सिंगल स्टार बनाया है, पर उसमें ओके अपने एक्सपीरियंस से स्टडी करके हम सब कलेक्टिवली, सबका एक्सपीरियंस कलेक्टिवली शेयर करेंगे यहाँ पे, देन वी कैन शेयर हाउ मार्केट बिहेव्स इन बाइंग जजमेंट व्हेन RC 38.2% ट्रेड्स। सेलिंग जजमेंट तो ये रिस्पेक्टिव ऑफ 38.2 ट्रेड करे या 61.8 ट्रेड करे, बाइंग करना ही नहीं है, सेल करके आना है, सेलिंग में ही रहना है। बट इन बाइंग जजमेंट, माय कॉन्फिडेंस, माय कन्विक्शन सेज कि जरूरी नहीं है कि RC 61.8 ट्रेड करके बंद हो, 38.2 ट्रेड कर लिया तो भी बस है। RC 100% ट्रेड नहीं किया हो तो भी we can continue to hold. ओके डन सर, थैंक यू। बट तो हाईलाइट किया हुआ रहेगा तो स्टडी करना इजी रहेगा, नहीं देखिए प्लान खोल के कहाँ करेंगे। हम अभी Good morning, sir. Yes, sir. In line with what Chetan was asking, I was also about to ask and say something of the same thing, significance of the single star. So, sir, आपने जो explain किया है, I'm just trying to understand it again so that कोई भी case study जब हम लोग करें तो वो चीज ध्यान में रखें। जैसे अभी आपने explain किया कि selling judgment है और अगर FC single star मिला है, FC 38.2 trade किया है लेकिन 61.8 नहीं किया है, so we can hold it. We can continue our hold. And second thing, what you said was that, whenever we are in a buying judgment, and if single star mila hai, RC 38.2 trade hua hai, but 61.8 नहीं trade किया है, so यहाँ पे एक बार जो active traders रहते हैं, they can, so I'm trying to say that इसको भी ध्यान में रख के हम लोग case study करेंगे कि we can observe that, in the subsequent days, single star मिला हो तो we can get another opportunity or opportunity to add कि थोड़ा सा lower price हो सकती है, मतलब it can come down, it can retrace a bit and before it rises, like नहीं, ऐसा नहीं है। बाइंग आपको सबको लिखना होगा, समझना, बाइंग इसको बाइंग जजमेंट के साथ रिलेट करना होगा। बाइंग का जजमेंट और RC 38.2% ट्रेड करे तो उसमें कोई कुछ it doesn't convey anything, we can continue to hold. बाइंग का जजमेंट हो और RC 61.8 ट्रेड किया है बट RC 100% ट्रेड नहीं किया है तो इट यूजुअली रिट्रेसेस। तो मतलब मैं वीकली ट्रेडर हूँ और डेली में RC 61.8 ट्रेड कर लिया बट RC 100% ट्रेड नहीं किया है तो मैं बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना प्रेफर कर सकता हूँ और नेक्स्ट डे वापस नीचे मिलेगा। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो भी मैं ये कर सकता हूँ। थर्ड है कि RC 100% ट्रेड कर लिया तो वहां पे ग्रेटर देन सिंबल दिया है जो हम देखेंगे तो बेस्ट बाई है। RC 38.2% ट्रेड कर लिए, बाइंग का जजमेंट हो, पॉइंट नंबर 1, और RC 38.2 ट्रेड कर लिया तो बेस्ट बाइंग है। RC 61.8% ट्रेड कर लिया तो भी खराब हो गया ऐसा नहीं है, रिट्रेसमेंट मिलेगा। और RC 100% ट्रेड कर लिया तो टेक ऑफ कर लिया और अभी उसमें बाइंग सस्टेन करेगा, अब रिट्रेसमेंट के चांसेस नहीं है और वो बढ़ता ही रहेगा। दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ वी शुड ऑब्जर्व। और इस ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट यूजुअली कैसे होता है 80% टाइम हाउ इट बिहेव्स, ये हम इतने सारे सब मिलकर स्टडी करेंगे तो 15-20 दिन महीने भर में इसका जो एक्सट्रैक्टेड एसेंस है मिल जाएगा। जो मैं अभी कह रहा हूँ फिर से कहता हूँ, बाइंग का जजमेंट हो, RC 38.2 ट्रेड कर लिया and 61.8% क्लाइंबिंग बाय, इट डज नॉट कन्वे एनीथिंग, बाइंग की पोजीशन होल्ड करो। RC 61.8 ट्रेड कर लिया, 100% क्लाइंबिंग बाय है, 100% ट्रेड नहीं किया तो रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें करेक्शन से मिलेगा, चाहे तो प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे ले सकते हैं। बट 100% ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। RC 100% क्लाइंबिंग बाय हो मतलब एक बार शायद पोज है, इसीलिए हम बार बार सालों से ये सीख रहे हैं कि RC 100% आया, प्रॉफिट बुकिंग लेवल रखा। और RC 100% अगर ट्रेड कर ही लिया है
मतलब कि यू नो इट इज समझ लो मेरे पास 3 स्क्रिप्ट है और 3 स्क्रिप्ट में से मुझे एक या दो ही होल्ड करनी है, एक एक्सिस पोजीशन है, आई विल प्रेफर टू होल्ड दोस पोजीशंस जो आरसी 100% ट्रेड कर ली है, and I will square off those position which is not managed to trade above RC 100%. Like this, Yes. no, we can select and reject the trades. Yes. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Got it. इसके पीछे की आइडियोलॉजी भी समझा दूं, साइकोलॉजी भी समझा दूं कि आरसी 100% ट्रेड किया मतलब प्राइसेस आर राइजिंग, तो जो बढ़ता है वो बढ़ता ही रहेगा, कंटिन्यू टू राइज फर्दर, जो ज्यादा बढ़ा है ना वही ज्यादा बढ़ेगा. Yeah. Sir, got it. Anyone else? Thank you. This is active traders जो इनिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है. हाँ मनीषा. मनीषा. प्रदीप. कीप इट सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल ही रखो. हाँ प्रदीप बोलो. जैसे आपने अभी समझाया, अगर बाइंग की पोजीशन हाथ में है तो व्हाट टू डू व्हेन अप्रोचिंग RC 38.2, RC 61.8 एंड RC 100, और वो ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे. वो 3 सिचुएशन आपने एक्सप्लेन किया. अभी सेम थिंग इन बाइंग की पोजीशन में अगर FC 38.2, FC 61.8 और FC 100% होता है तो क्या करेंगे. क्या मतलब बाइंग के पोजीशन में FC 38.2 ट्रेड कर लिया, देन व्हाट विल डू. RC 61, FC 61.8 ट्रेड कर लिया बट FC 100 ट्रेड नहीं किया, एंड FC 100 ट्रेड कर लिया, तो क्या ये 3 सिचुएशन बाइंग के पोजीशन में FC के साइड में. वन थिंग गोज विदाउट सेइंग कि FC 100% ट्रेड कर लिया हो तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे. बिल्कुल. और FC 38.2 ट्रेड कर लिया और आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, उससे फिर हमने PCDS का स्टॉप लॉस रखा होगा या PCS का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो भी बाइंग की पोजीशन करेंगे. FC 38.2 पे. हाँ, लेकिन 61.8% ट्रेड कर लिया बट 100% ट्रेड नहीं किया, तो उस बाइंग की पोजीशन में वापस अपने को रिट्रेसमेंट मिलेगा, बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और शायद वहां से FC 100% के सपोर्ट से ही it may again continue to rise further also. हाँ, तो मतलब अगर स्टॉप लॉस मेरा FC 61.8 है और वो ट्रेड कर लिया, देन ओनली विल थिंक ऑफ अ रिट्रेसमेंट एंड बेल आउट अपॉर्चुनिटी. और ये आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े ना, ज्यादा करना नहीं पड़े, उसके लिए मैंने बना के ही दिया है. तो PCS PCR जो बनाया है, स्नैक्स एंड लीडर्स जो बनाया है, कहीं भी अगर 61.8 से अगर सेलिंग अकर होती है FC 61.8 से, तो इग्नोर ही की है बाय डिफॉल्ट. RC 61.8 से अगर बाइंग अकर हुई है तो उसको इग्नोर ही किया है, सीधा RC 100% ही लिया है. ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू. It is really not importance of RC 100%. It is importance of RC 61.8%. 61.8 ट्रेड कर लिया मतलब उसका धर्म है, फर्ज है उसका, उसको RC 100% ट्रेड कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया. राइट. करते रहेंगे तो आएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मुलेट करके, बहुत ज्यादा उसको शेप अप करके एकदम उसको रूल बनाने की जरूरत नहीं है. रूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का होता है, ऑब्जर्वेशन का नहीं. Anyone else? अच्छा, तो नाउ आई विल टेक अप थर्ड सिनेरियो. सिंगल स्टार डबल स्टार हमने ले लिया, कुछ और लेते हैं, से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. यहाँ पे भी RC 100% ट्रेड कर लिया हो, वहां पे हमने PCCP के सामने ग्रेटर देन का सिंबल दिया है. जहाँ भी FC 100% ट्रेड कर लिया हो, वहां पे हमने लेस देन का सिंबल दिया है.
I don't know whether I can speak like this, but RC 100% के ऊपर चला जाता है ना, यूजुअली क्राउड जो है, क्राउड साइकोलॉजी की बात करें, गिव मी साइकोलॉजी के बगैर तो हिमांशु सा कम कर ही रहा है साइकोलॉजी बोलना, बट बिना साइकोलॉजी क्या बात करें। आरसी 100% ट्रेड कर लेते हैं तो क्राउड शॉर्ट कर लेता है, और एफसी 100% फ्लोर से ट्रेड कर लेता है ना, तो लोग सोचते हैं बहुत टूट गया, बाइंग करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आरसी 100 बाइंग का जजमेंट और आरसी 100% ट्रेड कर लिया हो तो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और अगर आपको प्रॉफिट बुक करने की इच्छा होती है, क्योंकि क्राउड बिहेवियर है, तो हम भी उसमें आ ही गए ना, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्राउड ओनली, वी आर लिटरेट क्राउड, दे आर इलिटरेट क्राउड, इतना ही फर्क है, बट है तो क्राउड ही। आरसी 100% ट्रेड करते ही प्रॉफिट बुक करने का मन करता हो तो उससे अच्छा काम करना कि भाई लिटिल क्वांटिटी जो है वो ऐड करके आ जाना, तो आरसी 100% का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। बाइंग का जजमेंट और आरसी 100% ट्रेड कर लिया हो तो हाउ इट बिहेव्स ये हम देखते हैं। पहले ग्रेटर देन जहाँ लिखा हुआ पीसीसीबी और ग्रेटर देन, ये पीसीसीबी है और आरसी 100% है, और बाइंग का जजमेंट हो जो अपने पास यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे आरसी 100% 1159.30 जो है वो ट्रेड कर लिया, तो बैंक की पोजीशन होल्ड कर लेनी चाहिए। मेरा एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आरसी 100% ट्रेड कर लिया तो ग्रेटर देन का सिंबल दिया हुआ है, एंड वी नीड टू सी, वहां पे नहीं बढ़ा था उस केस स्टडी में आरसी 100% ट्रेड करने पर भी। यहाँ पे भी 16 मार्च 1081.30 ट्रेड कर लिया है, तो आरसी, फिर यहाँ पे बात ही दूसरी होगी कि आरसी 161.8 भी ट्रेड कर लिया था और आरसी 261.8 क्लाइंबिंग बाय था, तो वैसे भी हम आरसी 261.8 आता है तो बाइंग की पोजीशन स्कोर ऑफ करते ही हैं इफ एनी। यहाँ पे भी पीसीसीबी 16 मार्च को ग्रेटर देन सिंबल दिया हुआ है, जो ये 16 मार्च का ही देखा हमने। एक और ग्रेटर देन यहाँ पे 26 मार्च, यहाँ 1095 ट्रेड किया है, 1095 ट्रेड कर लिया है, और बाइंग का जजमेंट हो तो हाउ इट बिहेव्स ये देखना चाहिए। ग्रेटर देन आरसी 100% हियर 3 अप्रैल को, ये रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। आरसी 100% 11 से 14 ट्रेड किया है, तो हाउ इट बिहेव्स यहीं पे है ना, क्राउड बिहेवियर है ना, 100% ट्रेड करते ही शॉर्ट्स, पहला तो बाइंग की पोजीशन किसी के पास हो भी बेचारे के पास तो प्रॉफिट बुक कर लेता है, नहीं बाइंग नहीं करता है। और आरसी 100% ट्रेड करते ही आप किसी ब्रोकर को फोन करो कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, ऐसे फोन करो अगर वो आपका पहचान वाला है, अगर वो आपको जवाब देता है तो आप देखना वो यही कहेगा कि सेलिंग के ऑर्डर्स ज्यादा है। और बाइंग का जजमेंट और आरसी 100% ट्रेड करता है तो क्राउड तो शॉर्ट करता ही है, बट बिलीव मी, मुझे क्या बिलीव करोगे, आपको ही मालूम है कि हम भी है ना प्रॉफिट बुक करते हैं, शिक्षा के पार्टिसिपेंट भी है ना, लगता है कि बहुत बढ़ गया, ले ले प्रॉफिट जो मिला सब। तो कुछ लोग अगर अभी भी ऐसा करते हैं तो उनको ही पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ कि आपसे 100% ट्रेड करता है तो खुश हो जाओ, स्क्रीन छोड़ दो और देखो उसी दिन वो क्या किया, क्या कैसे बिहेव किया, ये देखो। आरसी 161.8 भी ट्रेड कर लिया, इस तरह से एक दो केस स्टडी में नहीं, हमेशा 6 अप्रैल को आरसी 100% ट्रेड करके पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हो गया, 12 से 24 इसने ट्रेड कर लिया, तो क्या हुआ आगे जाके देखो। आरसी मतलब जहां जहां आरसी 100% ट्रेड किया हुआ है वहां पे ग्रेटर देन का सिंबल मेंशन किया है। यहाँ पे आरसी 100% ट्रेड किया है
तो ग्रेटर देन का सिंबल दिया है आरसी 100% ट्रेड करके। तो हियर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आरसी 100% ट्रेड करके बंद हुआ था, लेकिन इट कुड नॉट कंटिन्यू टू रेज फर्दर। इसके लिए इससे आरसी 100% ट्रेड कर लिया, इसलिए बाइंग कर लो। आरसी एफसी 100% ट्रेड कर लिया तो सेलिंग करके आ जाओ, ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। बाइंग का जजमेंट होना चाहिए। 4 जुलाई यहाँ पे आरसी 100% 1113 है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का सिंबल दिया, पीसीसीबी के बाजू में लिख दिया आरसी 100% ट्रेडेड। हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग वीक्स? इसी तरह से एफसी 100% हो तो यहाँ पे पीसीडीएस के बाजू में लेस देन दिया है। पीसीडीएस 1158, एफसी 100% 1166 ट्रेड कर चुका है। 1166 लोअर से ट्रेड कर लिया है, तो हमने लेस देन का सिंबल दिया है और सेलिंग का पोजीशन हो, और अगर एफसी 100% लोअर साइड ट्रेड कर लिया हो तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग इज बिगन, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम वहां पे प्रॉफिट बुक करते हो तो प्रॉफिट बुक करने से रुक जाएंगे। 1172.70 जो है, और ये कुछ भी नई बात नहीं है, हमने ये बात बहुत बार वेबिनार में रिपीटेडली कही हुई है, बट वो ध्यान नहीं रहता है। इसका स्पेशल वेबिनार लिया, स्पेशल टाइम दे दिया, तो शायद हो सकता है कि अब ट्रेडिंग परफॉर्मेंस जो है और ज्यादा इम्प्रूव हो जावे। अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस यहाँ से और इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए ये बात कर रहे हैं हम। 1078.35 लोअर साइड ट्रेड कर लिया है एफसी 100%। हाउ इट इज बिहेविंग देखो, हालांकि यहाँ पे तो स्टॉप एंड टू बाय सेल दोनों था, गजनी पे था, फिर भी इट इज कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। तो ठीक है, नाउ ग्रेटर देन लेस देन सिंबल में किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो उसका जवाब दे दूंगा। बाइंग का जजमेंट और आरसी 100% ट्रेड कर लिया हो तो बेस्ट बाई है, बाइंग की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और कोई प्रॉफिट अगर बुक करना हो, आपको हो सकता है कि 2-3 एक्स्ट्रा पोजीशन आपने एक्स्ट्रा रख ली हो, तो वो पोजीशन स्कोर ऑफ कर दो जो आरसी 100% ट्रेड नहीं किया है। बट वो पोजीशन खास घर लेके आओ, होल्ड करो, इसमें लालच करो कि जो आरसी 100% ट्रेड कर लिया हो, बाइंग जजमेंट। मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, देयर इज वन कॉल आई हैव टू अटेंड। एक मिनट में वापस आऊंगा।
बोलो कमलेश भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ સર. जय श्री कृष्ण। સર મેં પહેલા એન્ડ્રેસ કર્યો હતો अच्छा પણ વાંધો નથી આમાં सेलिंग નું जजमेंट और बाइंग का जजमेंट जो भी आप बोल रहे हैं अभी तो अभी तो फिलहाल पीसीएस और पीसीडीएस और पीसीसीबी और पीसीएस के हिसाब से ही कन्वे करना है ना उसको। नहीं जैसे या फिर एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अपने पोस्ट ओपनिंग ट्रेड में बाइंग का जजमेंट दैट वी आर रेफरिंग टू एंड समझ लो मैं पोजीशन ट्रेडिंग कर रहा हूँ लाइक नॉट से भाई रिवर्स और गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड या रिएक्टिव दैट आई एम कॉलिंग इट एज बाइंग का जजमेंट। पीसीएस पीसीआर से कोई बाइंग का जजमेंट हम नहीं ले रहे हैं, इंडिपेंडेंटली उसको हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ओके सर, तो यही पीसीआर इज नथिंग बट फॉलो बाइंग हुआ कि नहीं हुआ, फॉलो सेलिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हमने ये स्नेक्स एंड लेडर्स बनाया है। नाउ दैट इज ओवर एंड डन विद, जो हमने समझ लिया लास्ट वेबिनार में और इस वेबिनार में रिवाइज भी कर लिया। अब we are now trying to understand the importance of RC 100% as climbing by and when RC 100% is traded on higher side. जी सर, तो जी सर, तो फर्दर क्वेरी ये है कि ये जो स्नेक्स दी है हमने, यहाँ जो लेडर दी है तो उसमें हमने ये टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड लिखा है। आ रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैंने कहा ना 3 फेज में है। फर्स्ट फेज मैंने स्नेक्स एंड लेडर्स कैसे आया वो समझाया। सेकंड फेज हम ये सिंगल स्टार डबल स्टार इन आरसी इन एफसी हम समझेंगे एंड थर्ड फेज आज ही ले लेंगे। आज ले सकते हैं क्या? 12:30 बज गया तो वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड। तो हम आप लोग कहो तो शाम के वेबिनार में ले ले या कल के वेबिनार में ले ले, जैसा आप लोग कहें। अभी सबसे पूछ लेते हैं बिफोर एंडिंग द वेबिनार, ज्यादा लोगों को क्या कंफर्टेबल है। मैसेज नहीं करना, आई विल आस्क कि भाई कल रखें या शाम को 4 बजे रखें, ठीक है ना? उसके लिए भी मिनिमम 1.5 आवर चाहिएगा तो अच्छे से समझा पाएंगे। बहुत सिंपल था तो भी कहाँ 1.5 घंटा निकल गया, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं सर, मेरी क्वेरी वो समझने के लिए नहीं थी। मेरा तो स्नेक्स एंड लेडर के ऊपर ये इसके ऊपर ही क्वेरी थी। मान लो कोई भी मार्केट टूटते स्नेक्स आता ही रहता है तो उसका भी कुछ अपने साइन दिया है कि ऐसा कुछ है कि ये जैसे हम वो स्नेक्स और लेडर है ओरिजिनल वही खेलते हैं तो स्नेक्स का काम एबोव 50 के ऊपर चला जाता है ना, तब से स्नेक्स का काम चालू होता है कि वो 65 से 80 से 85 से 99 से सीधा 30 ला देता है, सीधा 10 पे ला देता है, सीधा 18 पे ला देता है। और लीडर का काम वैसा ही है कि जैसे वो बिलो 50 के 35 से सीधा 65 पे डाल दिया, 20 से सीधा 80 पे डाल दिया और अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको कंपेयर करे। वही स्नेक्स एंड लीडर्स जो हम बचपन में गेम खेले हुए हैं उसी को ध्यान में रख के थर्ड फेज और फोर्थ फेज जाना है। हाँ, तो मैं तो यही आप लोगों को भी स्नेक्स एंड लीडर्स फिर से खेलना पड़े तो खेल लेना। कुछ सोच समझ के रखा हुआ है स्नेक्स एंड लीडर्स का सिंबल, ऐसे ही नहीं रखा है। यस सर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि टर्मिनोलॉजी में बात करें तो स्नेक से हो अप्रोक्स टू नियर अबाउट टॉप आउट की फॉर्मेशन जैसा है, कुछ सेल कर सकते हो आप, आपके पास जगह है नीचे और लेडर आपके पास ऊपर। थर्ड फेज में लेते हैं ना, जब टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड लेंगे ना, विल कवर दैट इन दैट। अभी आज इतने ही रखते हैं, ग्रीन स्टार, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ग्रेटर देन, लेस देन, विल कम टू दैट आल्सो और टुमारो मॉर्निंग। जी सर, मेरी क्वेरी उसी के रिलेटेड है लेकिन मैं उसको चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करने के बाद लेट अस टेक अप, विल टेक अप नो। તમારા માટે કોઈ કે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી કે ભાઈ યુ નો ઓન ધ અધર ડે
कि कमलेश लाल नो वो फैन शू करीने आई वांटेड टू टेल हिम दैट डे बट वेबिनार का टाइम हो गया था। जो एक्टर्स होते हैं ना, सुपरस्टार होते हैं ना, उनका खाली फैन ही रहना चाहिए, उनकी जैसे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। वो अक्षय कुमार वगैरह, सलमान खान का सब मैं ऐड देखता हूँ, वो कोको कोला और पेप्सी के लिए पता नहीं पैराशूट से जंप करते हैं, बिल्डिंगों से जंप करते हैं। एक पेप्सी के लिए, एक सौदे के लिए इतना सारा जंप करने की कहाँ जरूरत है? अपने को तो ऐसा, अपन तो सीधे साधे लोग हैं। मैं उसको मेहुल को बोलना चाहता था उस दिन, अपन सीधे साधे लोग हैं, हम बैठे हैं और है ना, लस्सी आनी चाहिए स्ट्रो डाल के, हमको वैसे ट्रेड करने हैं। अक्षय कुमार एक पेप्सी के लिए क्यों इतना माथा पड़ी करना? अपने को क्यों अक्षय कुमार बनना है? अक्षय कुमार का फैन बन सकते हैं, अक्षय कुमार नहीं बनना है। बराबर ना? जी सर। अपने को तो लस्सी चाहिए, ऐसी लस्सी चाहिए जो टेबल पे आती हो और स्ट्रो डाल के आती हो। वैसे ट्रेड चाहिए। ठीक है, आई होप मैं कुछ कह पाया और कुछ समझा पाया। रुक जाओ, आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ। मुझे तो इस तरह की ऐड देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि एक पेप्सी के लिए, कोको कोला के लिए क्या इतना करते होंगे यार। वैसे ही हम लोग शेयर बाजार में भी करते हैं, मालूम है, एक अच्छे सौदे के लिए कितनी कुछ माथापड़ी करते हैं, कहाँ कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स ही हमको पसंद आते हैं। एक सिंपल सादा सीधा तो सिंपल 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 करेंगे ना, बस लस्सी चाहिए, नहीं चाहिए पेप्सी और कोक। वो भी वैसी पेप्सी और कोक जो यू नो निखिल बोलो। निखिल, निखिल, ठीक है, मैंने अनम्यूट किया बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। सो सिंगल स्टार मतलब आरसी 38.2 ट्रेड किया है, आरसी 61.8 ट्रेड नहीं किया है। डबल स्टार मतलब आरसी 61.8 ट्रेड किया है और आरसी 100% इज द क्लाइंबिंग बाय, और आरसी 100% ट्रेड नहीं किया है। ग्रेटर देन मतलब आरसी 100% ट्रेड कर लिया है। तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सके, स्टडी कर सके, इसके लिए हमने इस तरह से साइन दिया है। नाउ ये पहले पीसीएस देखते हैं। ये 29 जनवरी का पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय जो है, अभी सब लोग अवेलेबल है, इसके लिए मैं 1 मिनट में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। पहले पूछ लेता हूँ कि आज शाम को 4 बजे वेबिनार रखें। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू अंडरस्टैंड टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड? प्लीज रेज योर हैंड। How many of you are comfortable this evening 4 o'clock? How many of you are comfortable this evening 4 o'clock? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, शायद सुने नहीं सुने। मैं फिर से 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ और रिपीट करता हूँ। टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड का क्लास वेबिनार शेयरिंग तो सवेरे रखें या शाम को 4 बजे रखें? हैंड रेज करके आपको देना है कि आज शाम को 4 बजे रखें, यस और नो। आज शाम को 4 बजे ठीक है, आज शाम को 4 बजे बहुत कम लोग कंफर्टेबल है। तो टुमारो मॉर्निंग विल हैव एट 11 o'clock टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड। और अपना हैंड सिंबल जो है वो फिर से ऑफ कर दें। सो टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड विल कीप टुमारो मॉर्निंग राइट एट 11 o'clock। अब ये इन आरसी और इन एफसी का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे है, ये आई डोंट नो द सिग्निफिकेंस और यूसेज, बट इन एफसी का मतलब ये है कि ये पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट है ना, फॉलोइंग चैनल में है। एक्चुअली इन एफसी मैंने उसको बोला कि पीसीएस के बाजू में लिख के दे कि पीसीएस इन एफसी, तो ही कुड नॉट ब्रिंग इट
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 29 जनवरी को फाइनल सपोर्ट जो था वो पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट फॉलिंग चैनल में है 1108, 1106, नहीं सॉरी, कहाँ पे हम पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट एंड पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाई, तो यहाँ पे स्टॉप एंड इशू बाई एफसी हुआ एंड फाइनली पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट जो है वो एफसी 127.2 रहा था। एफसी 1, तो जब बाजार बंद होते होते सपोर्ट फॉलिंग चैनल में दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे आगे जाके इसका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। वाओ, देयर आर सम मैसेजेस दैट सर अभी कर लेते हैं। नहीं, अभी एक साथ में इतना लंबा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट दैट मैसेज बट नहीं, सॉरी, यहाँ पे पीसीएस मतलब बाजार बंद होते होते सपोर्ट जो था वो फाइनली फॉलिंग चैनल में था। तो हमको स्टडी करना होगा कि हाउ इट इज बिहेविंग। यहाँ पे मेरा स्टडी कुछ फिर कभी शेयर करता हूँ स्टडी, पहले देख लेते हैं एनएफसी का मतलब क्या है। यहाँ भी पीसीएस फॉलोइंग पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, मतलब बाजार क्लाइंबिंग बाय तो राइजिंग चैनल तो राइजिंग में गया, बट सपोर्ट फॉलोइंग चैनल में ही रहा। तो ये हम सब बाइंग तो नहीं करते, वी नो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वी डोंट बाई, क्योंकि सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन डिफरेंट चैनल एंड मतलब सपोर्ट एंड इज इन फॉलिंग चैनल एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल। तो हम ये ट्रेड तो लेते ही नहीं है, और ट्रेड नहीं लेते हैं वो तो हमको मालूम ही है कि हम ट्रेड नहीं लेते हैं, बट हाउ इट बिहेव्स इन कमिंग पीरियड वो समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीएस इन एफसी। फिर यहाँ पे देखते हैं बाइंग का जजमेंट हो और पीसीएस एफसी में हो तो हाउ इट इज बिहेविंग, सेलिंग का जजमेंट हो और पीसीएस एफसी में है तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये तो मालूम ही है, सेलिंग का जजमेंट हो और पीसीएस एफसी में हो तो सेल ही करना है। आरसी 100% उस प्लान का ट्रेड करना इजी नहीं होगा, बट बाइंग का जजमेंट हो और सपोर्ट एफसी में हो तो हमको ये स्टडी करना है कि क्या वो सपोर्ट जब रिट्रेस होता है तो पोजिशनल ट्रेडर हो, पैसिव ट्रेडर हो, बहुत बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम भी ट्रेड करते हैं और सपोर्ट एंड ऑफ द वीक में हमको मालूम ही रहता है कि सपोर्ट फॉलिंग चैनल में है और क्लाइंबिंग बाय राइजिंग चैनल में है, और बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हमारी स्टडी के बाद, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा आने वाले दिनों में पीसीएस तब रिट्रेस होता हो तो बाइंग की पोजीशन कुछ रीइनिशिएशन प्राइस रख के स्क्वायर ऑफ कर लें और फिर नेक्स्ट वीक में हम ले लेंगे, बट वो बाद में पहले देख लेते हैं कि पीसीएस जो है यहाँ पे फॉलिंग चैनल में है और क्लाइंबिंग बाय जो है वो राइजिंग चैनल में है। तो और क्लाइंबिंग बाय जरूरी नहीं है राइजिंग चैनल में हो, पीसीएस फॉलिंग चैनल में होना वो बनाया है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन एफसी हुआ एंड बाजार राइजिंग में गया ही नहीं, तो सपोर्ट कहाँ रहेगा, फॉलिंग चैनल में। तो पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट व्हेनेवर इट इज इन एफसी, हाउ इट इज बिहेविंग, ये जो स्टडी करने के पैशनेट लोग अपने पास बहुत है, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बताओ कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे भी पीसीएस जो है फॉलिंग चैनल में है, राइट। तो पीसीएस इन एफसी, तो जहाँ जहाँ इन एफसी लिखा हुआ है वहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट फॉलिंग चैनल में है, और जहाँ जहाँ पीसीआर पोस्ट बाजार टूट रहा है, रेजिस्टेंस से बंद हुआ, बट पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस जो था वो राइजिंग चैनल में था, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस इन राइजिंग चैनल एंड पोस्ट क्लोजिंग ड्रिफ्टिंग सेल हो सकता है राइजिंग में भी हो फॉलिंग में भी हो, वो कोई खास बात नहीं है, बट रेजिस्टेंस जो है राइजिंग में रहा फाइनल रेजिस्टेंस। तो हाउ इट इज बिहेविंग, पीसीआर इन आरसी, पीसीआर इन, ये रहा पीसीआर इन आरसी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 23 जनवरी को अगर पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस राइजिंग चैनल में है तो हाउ इट इज बिहेविंग, फाइनल रेजिस्टेंस इतना स्टॉप एंड इशू बाय सेल करके आखिर में पीसीआर वाज राइजिंग चैनल में था। और हाउ इट इज बिहेविंग ये स्टडी करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है।
इसके लिए ये बनाया है। बट जो भी करते हैं इट हैज टू बी इन ट्यून विथ एक्टिव शिक्षा का बाइंग का जजमेंट हो या पोजिशनल शिक्षा का बाइंग का जजमेंट हो, उसके साथ हमको फ्लो करना है। यहाँ पे पीसीआर राइजिंग चल में था, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस। लास्ट में पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस राइजिंग चल में वो भी आरसी 261.8 था और स्टॉप एंड सेल हुआ था। तो हाउ इट इज बिहेविंग, अब वो 261.8 मेरे मुंह से निकल गया, वैसा क्लब नहीं करना। जस्ट पीसीआर इन आरसी, हाउ इट इज बिहेविंग ये देखो। पीसीआर इन आरसी, राइट, यहाँ पे पीसीआर इन आरसी था तो भी काफी बड़ा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। 4 सिंबल्स, सिंगल स्टार, डबल स्टार, greater than, less than, and PCR in RC and PCS in FC। तो हम मॉर्निंग मिलेंगे। आप खुद टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड रेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक्चुअली आज मैं नहीं ले रहा हूँ और शाम को 4 बजे नहीं ले रहा हूँ। सब लोगों ने ऑप्ट भी नहीं किया है, ज्यादातर लोगों ने, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि इवन आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लेन दिस। एंड तो कल सवेरे मुझे कॉपरेट करना, एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी मत पूछना। हाउ टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड is achieved and how when it is traded, how it is behaving, ये दोनों हम देखेंगे टुमारो मॉर्निंग। एक लास्ट बात फिर से रिपीट कर दूं जाते जाते, ये LCP2 बाई सेल जो है ये रेडी रेफरेंस है। बाइंग का जजमेंट हो तो मेरा स्टॉप लॉस 1229 है। अगर बाइंग के जजमेंट में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, रिवर्सल बाई में मैंने माल लिया हो या अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग कुछ लोग करते हैं, उन्होंने पोजीशन हाथ में रखी हो, किसी भी तरह से RAR गुड वो सीरीज जस्टिफाई से रखी हो, तो दिस इज देयर फाइनल स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस तब चेंज होगा अगर RMSL लोअर खुला हो एंड ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल इज लोअर देन दिस। LCP2 बाई का प्राइस चेंज हो जाएगा मार्केट में अगर RMSL हायर ओपन खुला है, ओपन हुआ है, ओपनिंग टाइमिंग बाई इज ग्रेटर देन दिस। अदरवाइज दिस, मैंने कल रात को आई वाज वर्किंग अप टू 3 o'clock in the morning and I was studying this कि सब बराबर है कि नहीं है। मुझे ये जो टोटल PCS PCR अकरेंस जो है, मुझे अब कहीं भी एरर नहीं मिली है। एक एरर मिली है जो कुछ डिफरेंट ही है। बहुत बार स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हुआ हो ना मल्टीपल, उसमें एक एरर आई है, अदरवाइज इट इज फाइन। आप लोग भी, आप लोगों का दो काम है कि फर्स्ट सेशन में हमने PCS, और इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एकदम सही है। मैं चाहता हूँ कि आप देखो कि ये ग्रीन लेडर तब आती है जब सपोर्ट से बंद होता है, लाइट ग्रीन लेडर तब आती है जब पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाई ट्रेड तो कर लिया, BDP के साथ ट्रेड कर लिया, फ्रेश सपोर्ट भी दे दिया, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द डे स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो लाइट ग्रीन लेडर हो गई। इस तरह से डार्क रेड स्नेक तब आता है जब PCS और PCTS लोअर से ट्रेड कर लिया, अलॉन्ग विद WDP ट्रेड कर लिया और पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस से बंद हो गया, मतलब तो डार्क रेड स्नेक दिया है। बट वो फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो लाइट रेड आएगा। तो इस तरह से डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन लेडर, डार्क रेड, लाइट रेड स्नेक, ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा, आज रिवाइज भी किया। और आज सेकंड फेज में हमने देखा सिंगल स्टार, डबल स्टार, greater than, less than, RC 100%, FC 100%, and when PCR is in rising channel and PC is in falling channel, right? किसी की कोई क्वेरी हो तो मैं जवाब दे दूं। कल हम टर्न अराउंड, कंप्लीट अराउंड लेंगे मॉर्निंग 11 o'clock सेम टाइम। हाँ बोलिए सुनील। सुनील बोलो।
क्या बात है, मैं किसी को भी अनम्यूट करता हूँ तो सामने से अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सोनल पटेल, सोनल पटेल शायद वो कभी पार्टिसिपेट करते नहीं है, बर्थडे से। न्यू नाइस क्वेरी, बहुत सारे हैंड रेज है यार, अगर आप लोगों ने ऐसे ही हैंड रेज किया है तो प्लीज क्वेरी हो तो हैंड रेज रखो। संकेत, संकेत, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट एनीवन, आई डोंट नो व्हाट इज द इश्यू। निक्षित लास्ट, कुछ तो गड़बड़ है। निक्षित बोलो। Hello, hello. यस निक्षित, यस यस। Yes, sir. Sir, just wanted to ask a small query कि जब भी लाइट ग्रीन लैडर बनता है और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो जाता है, सो सर डू वी कंसिडर इट ट्रेंडिंग लेग टू बाय, मतलब जो अपना बाइंग था वो एस्टैब्लिश हो गया बट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया, तो जो रिट्रेसमेंट आना है वो आएगा बट ट्रेंडिंग लेग टू बाय से बाय में चल रहा है, राइट? बाइंग का जजमेंट हो हाँ, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग, राइट, अकॉर्डिंग टू सीरीज जस्टिफाइड, एक बात से राइट, फॉलो बाय, मतलब बाइंग एस्टैब्लिश हो गया था, इसके बाद में राइट. जब So भी sir let me put it more correctly. सर बेसिकली अगर वैलिड बाय पहले आया हो और उसके बाद लाइट ग्रीन लैडर आया हो, सो इसका मतलब है वैलिड बाय एस्टैब्लिश तो हो ही गया है बट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है, राइट? हम लोग को ऐसा माइंड में रखना है कि एस्टैब्लिश नहीं हुआ ये मानेंगे. let me try to explain you, give me 1 minute. According to Right. trending leg valid by and then follow buying आ चुकी हो, मतलब बाइंग एस्टैब्लिश हो गया है, या तो अकॉर्डिंग टू आरएआर गुडेबल सीरीज जस्टिफाइड एंड फॉलो बाइंग आ चुकी है, राइट, एंड उसके बाद में जितनी भी लाइट ग्रीन कलर की लेडर आती है, मतलब बाइंग आई और टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, राइट, और उसमें भी दैट टॉप एंड यूज टू सेल इज अबव बीडीपी, राइट. तो इट्स अ करेक्शन सर. तो आप जब इतना हम देख रहे हैं तो एक प्रैक्टिस करो, स्टडी करो कि वैलिड बाई दिख रहा है, उसके सामने अगर ग्रीन लेडर आ गई, फिर लाइट ग्रीन लेडर आती है, तो उसका जो भी पीसीएस है वहां तक बाजार आता है कि नहीं आता है, और वहाँ आके हाउ इट इज बिहेविंग। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही दिख रहा है कि ये वैलिड बाई था, और वैलिड बाई आने के बाद एक ग्रीन लेडर 19 जून को आ चुकी थी, मतलब यहाँ पे वैलिड बाई एस्टैब्लिश हो चुका था। तो सर इसी एग्जाम्पल में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डार्क ग्रीन के बदले लाइट ग्रीन आ जाता तो क्या हम वो वैलिड बाय एस्टैब्लिश मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते, नहीं मानते. ओके, दैट इज इट. ठीक है, ठीक है. फॉर अदर्स एवरीवन। और यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आने के बाद में लाइट ग्रीन लेडर है, तो देखो हाउ इट इज बिहेविंग, स्टॉप एंड यूज टू सेल है, यहाँ पे खास तौर पे लिखा हुआ है अबो बीडीपी, यू नो, राइट, 1223 के पास आके कैसे बिहेव करता है, देखो ये 1223 तक ही आया, फिर ये भी मालूम पड़ता है ब्लैक कलर से जानबूझ के दिया हुआ 1338 ताकि हमको ध्यान रहे कि
अब नई बाइंग जो है 1338 के ऊपर ही आएगी और नई सीलिंग जो है 1223 के नीचे ही आएगी। तो 1223 बाइंग का जितना है तो 1223 के पास आता है तो बाई कर लो, और 1338 आता है तो सेल कर लो। राइट। बट ये अब बढ़ेगा जब 1338 हायर से ट्रेड करे, और 1338 हायर से ट्रेड करे उसको हम कहेंगे करेक्शन सेल कंप्लीटेड Reversal. ओरिजिनल। राइट राइट। ओके सर, गॉट इट। बहुत सारे केस स्टडी के साथ हम देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये क्या इंट्रोड्यूस किया है। हाँ सर इसमें सिर्फ एक चीज था कि जैसे अपन बोलते थे ना कि वैलिड बाय आने के बाद अपन ये बोलते थे ना कि वैलिड बाय एस्टैब्लिश तो हो ही गया है, बट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल आ गया है। तो अभी आप कह रहे हो कि वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया तो वैलिड बाय एस्टैब्लिश भी मत मानो, राइट? जब तक डार्क ग्रीन का लैडर नहीं आए। एक बार डार्क ग्रीन लैडर आनी चाहिए। हाँ बस यही सुनना था सर, ठीक है, ओके। और लाइट ग्रीन लैडर आती है तो क्या उसके बाद में वापस डार्क ग्रीन फॉलो बाइंग आती है कि नहीं आती है, देखो। राइट सर, ओके। इसमें कुछ और भी बात है कि कब लाइट ग्रीन को मानना, बट वो फिर बहुत ट्रिकी हो जाएगा, अक्षय कुमार स्टाइल हो जाएगी, जो अपने को देखेंगे राइट। लस्सी लेते हैं अभी, पेप्सी छोड़ो। ठीक है, ओके। Anyone else? हाँ मुकुंद भाई बोलो। मुकुंद भाई चलो, आई थिंक इट इज टाइम टू लीव द वेबिनार, क्योंकि किसी को अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मनीषा बोलो। केवल बोलो। मैंने सबको अनम्यूट करके रखा हुआ है, जिनकी भी आवाज आएगी उनके साथ बात कर लेते हैं। भावेश भाई बोलो। ठीक है, सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 11 o'clock। हैव ए नाइस टाइम, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा तो कल का अपने को डाइजेस्ट होगा। थैंक यू ऑल।